Hello, everyone. Welcome back to this session and welcome back again to this ICMR Scientist B session. So, in this one, we are not going to discuss any more questions or strategies that how you can give your examination, which portion you have to study. Rather than that, we have to study, we have to analyze specifically that how was the examination paper, right? So, this will be a analysis kind of video. You all have given your examination related to non medical post, that is for scientist B. So you already have appeared in your examination. Now I have heard many of the student, I have taken reviews, I have heard that 90% syllabus was like CSIR level का question आया था and not from the prescribed ICMR syllabus. So what we have to do now, what should be your approach? Do we need to mail DGICMR? Do we need to ask them to take a re-exam or bonus marks? So what are the chances of these three possibilities? ठीक है? So ये वीडियो लास्ट तक देखना. आई विल पुट माई पॉइंट ऑफ व्यू. मैं देखा कि बहुत सारे ग्रुप में रेंडमली बातें चल रही हैं. अरे थोड़ा तो रुको, पेशेंस तो रखो, एग्जाम दे के आए हो तो कुछ तो मतलब रखो तो सही कि हाँ क्या एनालिसिस है, एडुकेटर्स का क्या कहना है. सो इसको पूरे ध्यान से सुनना, ठीक है. आई विल प्रोवाइड माई एनालिसिस ऑल्सो एंड वॉट यू हैव टू डू आई विल डिस्कस इन डिटेल. आई विल ओनली से कि सब्सक्राइब कर लो बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जस्ट अ मिनट, देन आई विल स्टार्ट दी सेक्शन. यस, सी, so objective of this video is to provide you the balanced and the professional analysis, right? I will provide you the balanced and professional analysis rather than only listening to ICMR or only listening to you. So it will be a like both व्यू आई विल बी टेकिंग. ठीक है, कि आपका क्या कहना है और आईसीएमआर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा ये पेपर बनाने का. ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अंडरमाइन कंसर्न बट टू इवेलुएट द इशू ऑब्जेक्टिवली. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, एक्चुअल में क्या हुआ है. सो आईसीएमआर हैव गिवन अस अ सिलेबस in which we are having research methodology, biostatistics, bioethics, reproductive and child health care, communicable disease and non-communicable disease, along with current affairs and some aptitude questions, right? So this was the syllabus prescribed by ICMR. Now what happened? So in today's exam, so many questions were like many candidates reported that substantial questions were from the different branches of life sciences rather than the ICMR prescribed syllabus, right? So questions were from biochemistry, immunology, molecular biology, cancer biology, and other core life science subjects. ठीक है, तो ये कंसर्न अराइज हो रहा है. तो यहाँ से कंसर्न हमें पता चल गया कि क्या है कंसर्न. कंसर्न ये है कि सिलेबस जो था आईसीएमआर ने कुछ और बताया था. क्वेश्चंस का जो प्रोपोर्शन है दैट वाज टोटली डिफरेंट एंड मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम दीज टॉपिक्स. ठीक है, तो यहाँ हमें कंसर्न समझ आ गया. अब थोड़ा आगे चलते हैं. सी, so what I have got from most of you, like I have got handwritten list from so many people. ठीक है, तो उसको मैंने एक जगह पे सम अप किया है एंड आई गॉट टू नो, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक. ठीक है, कि क्या वो अलाइन हो रहा है प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस से या नहीं हो रहा है. सो फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस टॉपिक 1 or unit 1 you can say research methodology and also biostatistic I have compiled. So many questions were asked like rare disease study type. ठीक है, which particular method you will choose to study the rare disease. ठीक है, so case control का पूछा था. what is ambidextrous study, basically इसमें पूछा होगा आपको retrospective and prospective study को मिला दे तो ambidextrous क्या होता है. which study is always retrospective, इसमें options थे like case control and all. देर वॉज सम क्वेश्चन जो रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन का मैथमेटिकल एसोसिएशन वाला कोई एक ऑप्शन था. सो क्वेश्चंस वर लाइक इफ सैंपल साइज इज लो, इम्पैक्ट पावर, पी वैल्यू, टू एस्टिमेट सैंपल साइज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये चाहिए चारों. इसके अलावा जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है. ठीक है, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है. दिस इज नॉट फ्रॉम दिस वन. ठीक,
Genomic imprinting is from genetics. ठीक है, जेनेटिक्स में आप इसे कंसिडर कर सकते हो. एंड फर्स्ट मार्कर फॉर ब्रेस्ट कैंसर. और एक क्वेश्चन आया था प्लेगरिज्म से. ठीक है, तो प्लेगरिज्म भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट हो गया. नाउ अब देखो, इतना पोर्शन तो आपके ही सिलेबस का है. ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट is bioethics. So bioethics say what was the thing asked in your examination. So as per different reviews, like what principle of autonomy was asked, and also some questions were related to legal and ethical issues in large DNA sequencing. ठीक है, प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या ब्रीच होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था. नाउ फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज, एवियन इन्फ्लुएंजा. ठीक है, सो इज इट पेंडेमिक टेंशन, बीएससी बायोसेफ्टी कैबिनेट 4 में कौन सा ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, ये और सक्सेसफुल पैरासाइट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में ट्राइसोम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था. ठीक है, लाइक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी. आई हैव हर्ड फ्रॉम यू ओनली, आई डोंट नो. ठीक है, सो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है. अगर मान लो कि इसको इसमें कंसिडर करो, ठीक है, इसको कट कर दो, जेनेटिक्स का ही मानो, तो भी वो सिलेबस में नहीं होता है. ठीक है, टॉपिक्स फ्रॉम नॉट कम्युनिकेबल डिजीज पार्शली जो रिलेटेड है ऊपर ऊपर से. फर्स्ट मार्कर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर रिलेटेड क्वेश्चन वाज देयर. वॉरबर्ग इफेक्ट. ठीक है, इंक्रीज्ड ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस. अब कुछ क्वेश्चंस जो थे दैट वाज फ्रॉम कोर बायोमेडिकल साइंसेस. ठीक है, लाइक viral tropism, genomic printing, DNA footprinting, bacterial plasmid versus genome, horizontal and vertical gene transfer, guardian of the genome, mitochondrial DNA, BRCA1, sulfur containing amino acid, DNA prone to phosphorylation. So all these questions were from core biomedical sciences and not from the prescribed syllabus of ICMR. Right? Now from biochemistry you have all these questions. सेल बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस थे, इम्यूनोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस थे. ठीक है, इन्फ्लेमाजोम था, और आर्टिफिशियल स्कैवेंजर का रिसेप्टर था, स्वीटनर और समथिंग कुछ क्वेश्चन ऐसा मिला था. और उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी से ये आपके क्वेश्चंस थे. टेक्निक से आपके क्वेश्चन ये सारे थे. ठीक है, यू कैन चेक इट आउट. मैं एक को नहीं पढ़ रही हूँ यहाँ पे. मेरा एम क्वेश्चन क्या है ये बताना नहीं है, रेदर देन जो आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है उसको मुझे एड्रेस करना है. ठीक है, अ, कितने क्वेश्चन अलाइन हो रहे हैं मेरे अकॉर्डिंगली, जितना मैंने देखा है एनालाइज करके, और कितना नहीं हो रहा है. सो एज पर माय एनालिसिस अप्रोक्सीमेटली 25 to 35%, और यू कैन से 40% तक के क्वेश्चन वर फ्रॉम ICMR प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, and like 65 to 75% were from non-recommended syllabus of ICMR. Right? I cannot say कि out of syllabus. देखो, out of syllabus बोलने में and अलाइन नहीं होने में बहुत डिफरेंस है. ठीक है, सो आई एम सेइंग इट वाज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, बट इट वाज अगेंस्ट द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस बाय ICMR. नाउ this supports the candidate perception that paper was heavily made from the core life sciences, biomedical sciences fundamentals like CSIR used to do. But as we are giving this examination for something else, so it has certain syllabus, but the examination, the organizers have not followed the exact proportion which we are going to which we are expecting. Right? So इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पे बताना चाहती हूँ. ठीक है बच्चों, क्योंकि आप ही में से कई लोग ये चीज़ बोलते हो कि अरे मैम के पढ़ाई में से तो कुछ भी नहीं आया. ठीक है, देर आर ओनली फ्यू, मैं नाम नहीं लूँगी. ठीक है, एंड पीपल से क्या ही एफर्ट. ठीक है, एक चीज़ करने में अगर आप एग्ज़ाम भी देने गए हो तो कितना एफर्ट लगा होगा आपको भी पता है. ठीक है, अगर पेपर भी सेट किया है ICMR ने या एम्स दिल्ली ने, जिसने भी किया है उसको भी उतने ही एफर्ट्स लगे हैं. तो एफर्ट्स वाली बात जो करता है, मुझे लगता है उससे बड़ा डम्ब इंसान मतलब है ही नहीं यूनिवर्स में, एग्जिस्ट ही यही करता है. ठीक है, तो वो बात एक हो गई अलग. नाउ आप मुझे बताओ, क्या मैंने आपको यही पढ़ा बताया है कि रेयर डिजीज में कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है. ठीक है, केस कंट्रोल. क्या आपको नहीं पता है एम्पिरिकल स्टडी जो मैंने एक डायग्राम आपको सिखाया बताया था, आई कैन प्रोवाइड यू एग्जैक्टली. That is actually not a bulky problem here, you know why? So see, I have properly provided you one arrow based question. ठीक है, एरो मैंने बताया था जहाँ पे मैंने लिखा था आपको
कि जो प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव दोनों तरह से स्टडी होता है वो क्या होता है, ठीक है। नाउ आपको क्या ये नहीं पता था कि प्लेगरिज्म क्या है? बायोएथिक्स में व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, व्हाट आर द लीगल एंड एथिकल इश्यूज इन डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है। प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मैंने नहीं बताया था, ठीक है। एसडी और रेंज का चलो ये बायोस्टैटिस्टिक का है, ये आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला ना भी याद हो बट सैंपल साइज दो हो तो इम्पैक्ट पर पावर पे आएगा कि पी वैल्यू पे आएगा। यू कैन रिलेट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है सो यू ऑलरेडी नो पावर क्या है, 1 माइनस बीटा, अल्फा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ठीक है। नाउ क्या मैंने आपको एक वीडियो BSL 1 to 4 तक का नहीं प्रोवाइड किया था, उसके ऑर्गेनिजम्स का बताया नहीं था? BSL 4 में इबोला के लिए हमें BSL 4 चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर हमने इसकी हम बात करें तो ये टोटली ठीक है, हमने नहीं पढ़ा था इसको, ठीक है, क्योंकि हम CSIR का सिलेबस नहीं प्रिपेयर कर रहे थे। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ICMR हमें ऐसे क्वेश्चंस देगा जो उसने सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है। नाउ दिस विल ऑल फ्रॉम दी बेसिक वो वाला। अब बताओ टेक्निक, मॉलिक्यूलर टेक्निक में PCR के मैंने इतने सारे सेशंस लिए हैं, बेसिक PCR, टाइप्स ऑफ PCR। तो क्या आप PCR में ये नहीं बता सकते कि क्या यूज होता है क्या नहीं यूज होता है, ठीक है। PCR ग्रेडियंट PCR पूछा था मैंने सुना, ठीक है। आइसोथर्मल PCR पूछा था। स्पेक्ट्रोस्कोपी में OD रेशियो कितना क्या होता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है इंस्ट्रूमेंटेशन का वीडियो, ठीक है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी क्या मैंने आपको नहीं बताया था? 70% इथेनॉल क्यों यूज करते हैं, ये तो बच्चा पहले ही दिन में सीख जाता है जब बायोटेक लेता है। तो प्राइमरी कंटेनमेंट ये जब BSL का वीडियो बनाया है वहीं पर बताया है, ठीक है। तो देखो मुद्दा ये नहीं है कि मैंने कितना बताया है नहीं बताया, छोड़ दो आप, मुझे जो भी बोलो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेरा मेन एम है कि अब आगे का सोचो, ना कि इसको लेके क्या करना है क्या नहीं करना है, बस उसी को ही लेके पड़े हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो इज योर कंसर्न वैलिड, आर कैंडिडेट कंसर्न्स वैलिड? सो माय आंसर इज यस, यू नीड टू बी कंसर्न, राइट। बिकॉज हमें एक सिलेबस दिया गया था, दिन रात आप उसको प्रिपेयर कर रहे थे, सो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन पेपर हैविंग सच प्रपोर्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं लाइक थोड़े से और फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी की, ठीक है। वाई वॉज द पेपर कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस? नॉट नेसेसरी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप मेल कर रहे हो DG ICMR को बच्चों, सो DG ICMR will say or the team will say कि the paper was not from like any external syllabus, it was a part of the syllabus prescribed. ICMR आपको सीधे ये कह देगा, क्यों कह देगा? बिकॉज आप इसमें क्या देखे थे, इट वॉज फॉर बायोमेडिकल साइंसेस, ठीक है। बायोमेडिकल साइंसेस वाले इसमें एलिजिबल थे। नाउ इट हैज सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बायोमेडिकल साइंसेस एक नीश है, उस नीश में मल्टीपल सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिन्हें अलाउ किया है, एलिजिबल किया है ICMR ने। सो ICMR विल से कि अगर आप एक साइंटिस्ट बनने जा रहे हो तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक साइंटिफिक रिसर्च पोजीशन ये है, सो यू नीड टू हैव अ मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज related to core biomedical sciences areas like immunology, because you should know about immunology की बॉडी में क्या हो रहा है, वैक्सीन जा रहा है, ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है। बायोकेमिस्ट्री आपको जाना जरूरी है, मॉलिक्यूलर क्या चेंजेस हो रहे हैं, जेनेटिक्स क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो ये सारी जो ब्रांचेस हैं एज पर ICMR पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारा कंसर्न बस इतना है, पिछली बार के सिलेबस में जैसे जनरल बायोटेक लिखा हुआ था, इस बार के सिलेबस में क्यों नहीं लिखा? अगर इस बार के सिलेबस में ये लिख दिया होता कि जनरल बायोटेक भी आपको पढ़ना है, सो यू कुड हैव प्रिपेयर्ड दैट, राइट। इट वाज इन योर माइंड कि हाँ हमें ये भी पढ़ना है। नाउ यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, एंड मैं इसको बहुत ज़्यादा आई कैन जस्ट रिपीट इट 100 टाइम्स कि मेरे हर वीडियो में जाके देखो बच्चों, हर कमेंट को जाके पढ़ो। जब भी किसी ने मुझसे पूछा है कि मैम आप माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हो, मैम आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो आया ही नहीं था, ये तो आएगा ही नहीं, तो क्यों ना पढ़ाऊँ मैं? क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको एक ही रिप्लाई दी था, मैं चाहती हूँ कि इस मैसेज पे जो ये बात कर रही हूँ प्लीज़ मुझे रिप्लाई दो, प्लीज़ मुझे कमेंट दो कि हाँ मैंने बोला था या नहीं बोला था। कि कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो बिना बेसिक साइंसेस के, मैंने हमेशा बोला है बेसिक्स ऑफ लाइफ साइंसेस करके जाओ, बेसिक्स ऑफ लाइफ साइंसेस करके जाओ, क्यों नहीं करके गए? मैं आप सवाल पूछती हूँ।
और अगर नहीं भी करके गए तो कुछ तो क्वेश्चंस बेसिक आए होंगे जो बने होंगे, ठीक है। सो माई ओनली कंसर्न इज दैट मैंने हर वीडियो पे बोला है, जिसने भी मुझे कमेंट करके बोला है कि मैम आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हो, तब भी मैंने कमेंट किया है हाउ यू विल अंडरस्टैंड विदाउट नोइंग द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी द एक्चुअल सिलेबस ऑफ द बायोमेडिकल साइंसेस, ठीक है। सो ये एक सीख है, एक लर्निंग है फ्यूचर एग्जाम के लिए। स्टिक मत हो जाओ कि जो सिलेबस है उसी को बस पढ़ना है। अगर मेरे स्टूडेंट हो तो मेरे हर वीडियो में जाके देखो कि मैंने ये बात कही है या नहीं कही है, कि बेसिक्स पढ़ो, लाइफ साइंसेस पढ़ो। क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो एग्जामिनर का जो व्यू है वो ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस लेके क्वेश्चन बनाएगा। वो क्वेश्चन बनाएगा और वो क्या देखे, हाँ रिलेट हो रहा है ये तो सिलेबस से, इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है, हाँ रिलेट हो रहा है ये। सो मेरा कंसर्न बस इतना सा है कि इशू हमारा है अलाइनमेंट का, कि सेंट्रल क्वेश्चन इज नॉट वेदर द टॉपिक्स वर साइंटिफिक और इररेलेवेंट और रेलेवेंट. The real issue is that the degree of alignment between a prescribed syllabus and the actual weightage of question in the examination. Like general biotech, life sciences was not mentioned in the syllabus. Also, aptitude and reasoning के question, current affairs के question बिल्कुल नहीं आए थे, मैं सुन रही हूँ, ठीक है। Should candidate write to DGICMR और ICMR team? Yes. एज अ स्टूडेंट दिस इज योर राइट, ठीक है, आपको लिखना चाहिए जो भी आपको लगता है। आपके एंड से आप अपना पार्ट करो। सो इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, वो क्या करते हैं, क्या वो फिर से री एग्जाम करेंगे, क्या वो बोनस देंगे, उसकी भी क्या प्रोबेबिलिटी है, हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उन्हें फैक्चुअल्स दो, एविडेंस बेस्ड चीजें दो, ना कि इमोशनली बोलो कि नहीं आपने सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा। विद देयर बी अ री एग्जामिनेशन, आई थिंक क्वाइट ट्रू, एकदम नेग्लिजिबल चांसेस हैं, ठीक है। अभी क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर मास में ये इशू नहीं आता है तो बोलते हैं ना कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। सो कुछ नहीं करेगा आईसीएमआर भी, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री कहता है कि जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, वो तभी रिपीट होते हैं जब या तो पेपर लीक हुआ हो, या कई सेंटर्स पे एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो पाया हो टेक्निकल ग्लिच की वजह से, या कुछ ऐसा कुछ सर्टेन चीज़ें हुई हो, तब जाके पेपर रिपीट होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ बोनस मार्क्स, क्या इतने सारे बोनस मार्क्स मिलेंगे? बोनस मार्क्स या वो क्वेश्चन एग्जेम्प्टेड हो जाएगा जिसमें अगर कोई मिस्टेक होगा, कुछ टेक्निकली कुछ वो क्वेश्चन गलत है, ऐसा कुछ, तब जाके वो पॉसिबिलिटी बनती है। बट एज ऑफ नाउ, जब तक आईसीएमआर का कुछ आपको रिप्लाई नहीं आता, डोंट थिंक कि री एग्जाम होना है या बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे। लेसन है ये फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कि लाइफ साइंस का जो फंडामेंटल है उसको पढ़ के जाओ। ये मत देखो कि सिलेबस में बस इतने ही, आप तो इतने बड़े हो गए हो यार। मेरे को तो डाउट, मैं अपने मास्टर्स में भी यही सोचती थी कि मुझे सिलेबस पे स्टिक नहीं होना है, मैं जितना पढ़ूं भले इस एग्जाम में नहीं आए तो क्या होता है, मेरे दिमाग में तो वो रहेगा ना, मेरे को आगे भी तो काम आएगा। सो आई थिंक दिस वाज माय एनालिसिस, यू कैन मेल देम, बट व्हाट विल बी द डिसीजन नो वन नोज, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है। मास में अगर बहुत जितने बच्चों ने, सपोज अगर 1 लाख बच्चों ने दिया है, एंड अगर उनको 20-30,000 ऐसा मेल मिल रहा है, तब वो कुछ सोचेंगे। ऐसा नहीं कि 100-200-400 लोग मेल कर रहे हैं। आईसीएमआर इतना फ्री नहीं बैठा है कि एग्जाम फिर से कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो, अगर सब लोग फैक्चुअल्स के साथ में कर रहे हैं, देन दे विल कंसिडर कि हाँ कुछ हुआ है। बट अदरवाइज वो लोग यही कहेंगे कि सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं बायोमेडिकल साइंसेज नीश में। सो देर इज नथिंग टू डू नाउ। अब आप लोग मुझे अलाउ करोगे, मुझे बोलोगे, तब जाके मैं कट ऑफ से रिलेटेड कुछ बात करूंगी, अदरवाइज आई विल नॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।